बाणी कह सेवक जन माना प्रतख गुरु निस्तारे। वाहो वाहो बाणी निरंकार है तिस जीवड़ अवल न कोई। जी सौ चंदा उगवै सूरज चढ़े हजार इते चानण होंदियां गुर बिन घोर अंधियार। आओ सिख सतगुरु के प्यारिओ गावो सच्ची बाणी। बाणी ता गावो गुरु केरी बाणियां सिर बाणी। परम सत्कारयोग सन्मानयोग समुची सृष्टि नूं तारन वाले सर्व कला समर्थ संपूर्ण गुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की गोद विच जुड़ बैठी गुरु प्यारी गुरु सवारी गुरु रूप खालसा सत्संग जी। अपने सब दे धन भाग चंगे कर्म चंगे संस्कार कलयुग दे इस भयंकर समय विचों माया मूह दे जाल विचों समा कढ के आपां सब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की गोद विच बैठ के धुरों इलाही गुरबाणी कीर्तन के रूप विच नितनेम के रूप विच पवित्र हुक्मनामे के रूप विच सरवण कीती। आप जी ने पवित्र हुक्मनामा भी सरवण किया है। पंजवें नानक शहीदां दे सरताज शांति दे पुंज धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की पवित्र रचना है। हमरी गणत न गणिया काई अपना बिरद पछाण हास्ते राखे कर अपने सदा सदा सा पानीमा। सवेर तो अमृत वेल तो लैके आप श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के दर्शन करते हो। ये दर्शन करने की एक शर्त पातशाह ने लाई है सारे साडे सिखां नूं। गावन रागी गावे गीते बद दसे उतरे जे चीज पेखे व्यंजन परोसन हारे जे भोजन कीने ते तृप्ताए। सिद्धे जे अर्थ ने भुखे मोरे थाली परोस के रख देना भावें 36 प्रकार के भोजन होण थाल विच पए। जिन्ना चिर भुखा इंसान उहदे विचों कुछ खांदा नहीं ते भुखा भुखा ही रहेगा, उसका पेट तृप्त नहीं होएगा। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नूं केवल तकिया परिक्रमा कीतिया चले जाण नाल श्री गुरु ग्रंथ साहिब विचले वडमुल्ले हीरे प्राप्त नहीं हो सकते जीवन में। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी जिहड़ी सारी पवित्र गुरबाणी है वो मनुख नूं याद कराउंदी है कि प्राणी तू आया लाहा लैण लगा कित कुफकड़े सब मुख दी चली रैण। कि मनुख तू परमात्मा काल पुरख वाहिगुरु नालों टुट चुका है। तेरी जिहड़ी तंद है तार टुट चुकी है, तेरी लेवर टुट चुकी है। ये सारा कुछ याद कराउंदी है। मनुख नूं सारियां चीज़ां याद ने। मैनूं कुछ मन की स्टडी खोज रिसर्च करने का मौका मिलिया। परमात्मा काल पुरख ने बख्शिश की कि मैं जेल में पिया समा हुंदा उत्ते काफी खुला समझ पई कि जो मनुख नूं
ਮਨੁੱਖ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ? ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸਰੀਰ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ? ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਮਾਤਾ। ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦੀ ਬੋਡੀ, ਸਰੀਰ। ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਮਿਲਦੀ ਮਾਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗਰਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਪਿਤਾ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਾਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ, ਮਾਤਾ ਮਿਲੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਮਿਲੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਚਕਾਚੌਂਧ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਮਨ ਲਿਖਾਏ ਮੰਡਲ ਮੇ ਆਏ। ਮਨੁੱਖ ਭੁੱਲਿਆ ਮਨ ਨਾਲ। ਸਾਰੀ ਸੇਫਟੀ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਮਨ ਨਾਲ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖੇਡ ਉਪਜਦੀ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹੀਏ ਭਲਾ ਗਈਏ, ਝੋਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਜੇ, ਗੁਣਾ ਕਾ ਹੋਵੇ ਵਾਸਨਾ ਘਟ ਵਾਸ ਲੀਜੇ। ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਔਗਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਮਨੁੱਖ, ਓਨਾ ਚਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਗਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦਾ, ਗੁਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਔਗਣ ਦਿਖਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਕੀ ਦਿਖਦੇ ਨੇ? ਗੁਣ। ਜਿੱਦਣ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਔਗਣ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀਅ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੌਸਪੀਟਲ 'ਚ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਖੁਦ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਮਝ ਲੱਗੇਗੀ ਵੀ ਇਹ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਹੌਸਪੀਟਲ ਆਇਆ ਜਾਂ ਆਈ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਕਿਰਪਾ, ਰਹਿਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਾਂ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਖੋਜ ਪੜਤਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਮਨ ਦੀ, ਤੇ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਮਨ ਬਾਰੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪੁਆੜੇ ਦੀ ਜੜ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਮਿਲਦਾ। ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ ਜਾਓ, ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਜਾਓ, ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਜਾਓ, ਪੈਰ ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ ਜਾਓ, ਟੋਪੀ ਨਾ ਭਰੀਆਂ, ਕੁਛ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਭਾਈ ਮਨ ਵੀ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਲਿਜਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਬਵੇ ਕਿਵੇਂ। ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੰਘ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਕੁਝ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਆਖੇ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਮਾਂ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਦੀ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਿਠਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਘੂਰਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਗਰਭ 'ਚ ਬੱਚਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ 9 ਮਹੀਨੇ, ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ
बच्चे नूं ਉਹ 2 4 ਜਾਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਉਹ ਦੁੱਧ ਜਦੋਂ ਪਿਲਾਉਂਦੀ ਆ ਆਪਣਾ ਜਾਂ ਲਾਵਾਂ ਦੁੱਧ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੱਚਾ ਭਾਵੇਂ 5 ਮਿੰਟ 4 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਕਰੇ ਮਲ ਮੂਤਰ ਉਹ ਅੱਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਜੋਤਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਝਿੜਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਵੀ ਉਹ, ਬੱਚਾ ਵੀ ਉਹ। ਜਦੋਂ ਸਾਲ ਖੰਡ ਜਦ 10 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰਿੰਨ ਤੁਰਨ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਝਿੜਕਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੋ ਨੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਐਕਸੈਪਟ। ਐਕਸੈਪਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮੰਗਾ ਆਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੱਚੇ ਤੋਂ, ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਪਹਿਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠਦੇ, ਬੱਚਾ ਬੈਠਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਜਿੱਦੀ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਪਈ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਲੇਸ਼ ਪਿਆ, ਲੜਾਈ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਐਜ ਇਟ ਐਕਸੈਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ ਜੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਔਕਣ ਨਹੀਂ ਦੀਦੇ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਔਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਮਰਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਔਗਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪਵਾੜਾ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ, ਮਨ ਦਾ ਵੀ ਖੇਡ ਬੱਚੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਮਨ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹਿਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਬਹਿ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ। ਸਰੀਰ ਬਹਿੰਦਾ, ਮਨ ਤਾਂ ਬਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਮਨ ਨੇ ਇਹ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਪਾਸਟ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਪਾ। ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖ ਚੋਂ ਬਹਿੰਦਾ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਫਲਾਨੇ ਟਾਈਮ ਜਾ ਕੇ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਕੀ ਹੋਣੀਆਂ, ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੋਣੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ? ਇਹ ਖੇਡ ਹੀ ਇਹਦੀ ਪਾਸਟ ਤੇ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਜੰਗ, ਪਿੱਛੇ ਸੋਚਦਾ ਜਾਂ। ਉੱਥੇ ਜਰਮਨ ਕੋਲਨ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਮਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਇਹ ਕੋਈ 15-14 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, 27 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਅਮਰ ਛਕੇ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਖਾਂਦਾ, ਇਹ 20 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। 20-25 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਦੋਂ ਯਾਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮਨ ਕਾਬੂ ਚ ਰਹਿੰਦਾ? ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੱਚ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਲਿਆਓ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਭ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਦੂਰ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੇ ਬੱਚਾ ਹੈ 12-13 ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਹੈਗੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਆਪਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਟਰਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੂੰ ਸਵਾ ਦੇਣਾ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੱਸੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਖਪਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਮੰਤਰ ਆ ਕੋਈ, ਤੇ ਪਰ ਮੰਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਤੇ ਬੱਚਾ 4-4.5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਉਹ ਠੱਲ ਨੂੰ ਉੱਠੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਸੌ ਸਕਦਾ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮਨ ਬੈਠਾ ਸੌ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਗੋਰੇ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਦਾਸ ਕੋਲ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਔਖਾ ਸਖਾਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਇੱਥੋਂ, ਇਹਦੇ ਪਾਸਟ ਫਿਊਚਰ ਪਿੱਛੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣ ਆਈ ਗਿਆ ਮੈਂ ਜਾ, ਇਹਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ 1 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ 1 ਸਕਿੰਟ 'ਚ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਬਹਿ ਸੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ, ਉਹ ਦੇਖ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਕੀਰਤਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਥਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਸੁਣ।
हौली हौली ये अभ्यास आ, महीने 2 महीने का। जो हर बारी कोरा मारी जाएंगे कि बेटा हूँ आई गया कितने काम पिछे छड़ के आ, गड्डी लैके आ, तेल हो के आ, शर्म कर बैठ हूँ। इन्हें फिर इत्थों तक भी अखा मीटिया बंदे दे भी इन्हें देखना पेंशन सुननी कि आया हो हूँ मत्था टेकन या किन्ने पैसे पाए होने, इन्हूं कहना ये तेन की लोड़ है छड़ पाए, ये फिर कर लाँगे आप गल, ये किहड़ा काम आ। इन्हें फिर कहना फलाना काम करिए, कहना वो फिर कर लाँगे, पहला हुण 10 मिनट बैठे लै जा। ये महीना 2 महीने अभ्यास करिए, अवश्य मन जिहड़ा टिकेगा। जे श्री गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी दे विच सिख का मन नहीं टिकना, कित्थे जाके टिकेगा? कोई दुनिया की जगह हैगी जिथे मन एकाग्र हो सकता? साडा इत्थे नहीं एकाग्र हो रहा, क्योंकि असी बहुत ये फिर सानू एक होर स्टैप पीछे जाना पड़ेगा। फिर सानू लपना पड़ेगा जन्म जन्म की इस मन को मन लागी, काला हुआ स्याहो खाली धोती उजली ना हो जैसो तोमड़ पाओ। हुण पुराने सिंह बैठे ने, वो तेली हुंदे सन, कोलू चलते सन, हुण भी जिहड़े तेल कढ़दे पता इत्थे मोहरे टाकी बन्नी हुंदी, कपड़ा बन्निया हुंदा, जां रसोईयां दे जिहड़े काम करदे लम्मा समा कई किस्म का तेल लगदा उस ते ये मन नूं साफ नहीं हुंदा, कपड़ा खराब ही रहता। पातशाह कहते मन भी जन्म जन्म की इस मन को मन लागी, काला हुआ स्वाद जिन्हों कहते सुहा वर्गा काला हुआ गंदा होया पिया, पता नहीं चीता बनया, शेर बनया, बघियाड़ बनया, कुत्ता बनया, हाथी की बनया है, हुण मनुख बनया। पर कमाल की खेड ये है भी दुनिया के किसी जानवर नूं, कुत्ते नूं कदे नहीं कहा गया कुत्तियां तू कुत्तियां वाले काम कर, कदी कहंदा वो कुत्तियां वाले काम नहीं करता कुत्ता। खोते नूं कदी नहीं कहा गया खोता खोत्ते वाले काम कर, बंदर नूं कदी नहीं कहा गया बांदर बांदर, मनुख नूं कहा गया ऐ मनुख कुत्ते वाले काम छड़ दे, और बंदर वाले काम छड़ दे, फलाना बंदा सप वर्गा, फलाना बंदा खोते वर्गा कहने ना। क्यों? क्योंकि मनुख काम उदा नहीं करता। किसी को कभी क्या किसी जानवर को कभी एग्जाम्पल दी, मनुख को क्यों दी गई? क्योंकि मनुख मनुखा वाले काम छड़ बैठा। सारी वंश सिस्टम बड़ा सीधा क्लियर है दुनिया की। एक वनस्पति है, पौधे दरख्त का फूस फसना, एक पंछी ने छोटे जानवर, एक बड़े जानवर ने। बड़े जानवर ने वो छोटे जानवर को खाते हैं, जिहड़े हाथी को दूसरे ने घोड़े पशु ये खाते हैं, घाह फूस खाते। जे वनस्पति जे जानवर ना हो, वनस्पति इन्नी हो जू जंगली का मनुख का रहना रह नहीं सकता। इस परमेश्वर ने वनस्पति को कंट्रोल रखने लिए बड़े जानवर, छोटे पंछी मनुख के मित्र ने कीड़े मकोड़े खाते हैं, उन्होंने खाने लिए बड़े जानवर रखे ने। ते मनुख को इत्थे रहने की बहुत सोहना एक सिस्टम दिता। वनस्पति भी सही काम कर रही है, जानवर छोटे भी सही करते हैं, बड़े भी मनुख नहीं सही कर रहे। मनुख वनस्पति भी वड्डी जाता, मनुख पानी गंदा करी तुरे जाता, पवित्र हवा गंदी करी चली जाता, धरती गंदी करी तुरी जाता। पर मैं सोचा भी धरती गंदी ते मनुख साफ कर लूगा किसी समय, पानी गंदा भी साफ कर लू, हवा गंदी साफ कर। जे मनुख गंदा हो गया वो कितना साफ होगा? मनुख ने अपना समाज गंदा कर लिया। कभी दुनिया के वो काम हो रहे ने जिहड़े इंसान ने सुने नहीं सी। इहो ਜਿਹੇ रिश्ते नात्यां विच तरेड़ा गिरावट आ गई मनुख दे विच। मनुख किसी पुरातन किताब में पढ़िया नहीं सी भी इन्नी गिरावट आ गई। कलयुग का इन्ना पैदा क्यों? ये सिखां दे क्यों आया कि असीं साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की पवित्र गुरबाणी को समझिया नहीं। मैनू एक साडे परिवार की कहानी याद आई है, मेरे लिए टुंबदी है। साडे रिश्तेदारी पुरातन गल है, पिंड दे विच श्री अखंड पाठ साहिब रखे। उदों अखंड पाठ साहिब नहीं रखते सन, जेडे सियाणे बैठे साल बाद किते 10-20 पिंडां मगरे अखंड पाठ हुंदे सी, जग लाउंदे सी, लंगर लाउंदे सी। उन्होंने अखंड पाठ रखिया ते बजुर्ग उदों
खद्दर की कमीज जी लंबी जी जिन्होंने आप झग्गा कहते ही तो लंगोटा लाते ही तो सावा सिर से होंगे वो ज्यादा 4-5 होंगे भरा होंगे तो एक विआह होंगे बाकी खेतों काम करते सन ते साधु लोग सन काम क्रोध लोभ मोह हंकार जिहड़े सानू चंबड़े ना साढ़े 10-10 8-8 साल के बच्चे ने उन्हें कोल दी भी लंघे सन उन्होंने जाके किसी ने खेतों च सुनेहा दिता अपने घरे गुरु ग्रंथ साहब महाराज का प्रकाश से अखंड पाठ साहब जो ये नाम निशान ही नहीं सी आड़ दे तो हट तो खूह तो मुँह हथ धो के गुरु ग्रंथ साहब जो घरे गया कोई बजुर्ग जाते नहीं सन 6-6 महीने घर ही नहीं जाते वो गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश दे के नाले ताही रोपिया ते धरम दे के डिग जा कि पातशाह साडे परिवार तो की अवज्ञा होगी कि असी पाप करता जिहड़ी अवज्ञा नूं धोण लई जिहड़े पापां नूं साफ करन लई तुहानूं तकलीफ होई चल के गुरुद्वारा साहब तो साडे घर आउणे पिया इदां दा साडा नेचर हैगा गुरु ग्रंथ साहब अज हज़ारां अखंड पाठ हुंदे ने पढ़न वाले इदां तुरदे ने जिन्हां ने अखंड पाठ कराउणा हुंदा वो परिवारां नूं मिलदे ना कोई सुणदा ना कोई करदा की लभदे गुरु ग्रंथ साहब पासों सी गुरु ग्रंथ साहब साडे ते खुश हुंदे भी तुसीं सिखो चंगा काम कर रहे हो गुरु ग्रंथ साहब साडे ते खुश नहीं जदों असीं साहब श्री गुरु असीं तुसीं नाराज ना होना असीं किताब तो बाद कुछ नहीं मनदे सारियां असीं रस्मां करते हैं मजबूरी बस गुरु ग्रंथ साहब असीं साक्षात गुरु नहीं मन्निया गुरु ग्रंथ साहब गल्लां करते हैं साडे नाल गल्लां सिख गल्लां करनियां चाहुंदा आपां जिद्दां हुण गल्लां करदे गुरु ग्रंथ साहब गल्लां करदे मैनूं आनंदपुर साहब जाण दा मौका मिलिया दर्शन कीते ते वो टीवी विच देख लिया किसी गुरु प्यारे ने मैं नाम लैना उचित तां नहीं समझदा मैनूं कोई उजर नहीं गुरु ग्रंथ साहब नाल कईयां दी बिरती बहुत जुड़ी हुंदी उहदे नाल फिर होर तरह हो जांदा उन्हें फोन किया भी अकैडमी उन्हां दियां 2 चलदियां सी गुरमत अकैडमी कहते भाई साहब तुसीं आए साडे बच्चों को आओ मैं कहा ठीक है जी उत्थे उन्हें फोन किया फोन जा बड़े बच्चे उन्हें इकट्ठे कर ले स्वच्छता सी काफ़ी बच्चे तो जी मैं गुरमत अकैडमी की गल कर रहा किसी स्कूल की नहीं कर रहा मैं कहा कि लैक्चर करो मैं कहा लैक्चर की गल आप बेनती करते हैं बेनती की भी किहड़े किहड़े जपजी साहब का पाठ करते हैं सारे ने हाथ खड़े करते मैं बड़ी खुशी की गल दूसरी बेनती की कि किहनूं समझ सारे ने फिर हाथ खड़े करते मार दी गल है बड़ी खुशी की गल है तीसरी बेनती की तुसीं सारे जपजी साहब पाठ करते हो श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की पवित्र बाणी में सवाल जवाब ने साडे ते जपजी साहब प्रथम बाणी है ये प्रथम मीन मतलब पहला वैसे विद्वानों ने 16 सवाल नहीं कढ़े पर जो पहला सवाल वा जे वो मनुख नूं पता लग जाए उस सवाल का सवाल के उत्तर का सवाल के उत्तर का पता लग गए तो मनुख बन सकता है वो किहड़ा सवाल है सारे नीवें पा लिए फिर बेनती की भी मां टीचर तुसीं दस दो उन्होंने भी नीवें पा लिए मैं कहा पढ़िया नहीं कि की सवाल है मैं कहा केवल सचियारा हुई है क्वेश्चन किवें सचियारे हुए आप लड़की पूछूगी बच्चा पूछूगा मैं किवें BA करा किवें MA करा किवें फलाना काम करा किवें सचियारे भी इसका मतलब पहला सवाल तो यह भी आप सचियारे नहीं है क्वेश्चन अपने तां कीता गया भी आप सचियारे नहीं एक बीबी हुंदी सचज्जी एक हुंदी कचज्जी कचज्जी बीबी कचियारी कह लो वो तो 10 लीटर का दुध ना बच्चे नहीं पाल सकती एक हुंदी सचज्जी 1 लीटर के दुध ना बच्चे पाल दही भी खवा दो मक्खन भी खवा दो सारा कुछ खवा दो सफाई रखो तो यह मतलब आप सचियारे नहीं है कचियारे हैं फिर किवें हुई नाल ही दूआ सवाल रिलेटेड है क्वेश्चन रिलेटेड है केवल कूड़े टुटे पाल होंदी कंध कूड़ की कंध अंदर आ एक सच है एक झूठ परमात्मा का पुरख सच है जी माया सृष्टि के आप झूठ है
क्योंकि आप सतीवी नहीं है, आप पक्के नहीं रहना, ये झूठ है। जी सानू दिस रही चीज सारी सृष्टि रात नूं सुत्तियां पै एक पल एक अख के पूरे ना सारी तैश तैश हो सकती, परमात्मा कर सकता। तो इस्लामी ना देखिए ये झूठ वा, परमात्मा सच है। ये फिर कूड़ दी पर्दा जिहड़ा जिन्होंने भबीरी के पंख ही जिन्ना क्या भी इन्ना पतला पर्दा किवें टुटे। हुण थोड़े आने दुकानदारी भी पत्थर दी जो थोड़े चार मारे टुटे किवें टुटे, नाली उतर किवें है जी, हुक्म रसाई चलना नानक लिखा ना। जितने असीं ये चीज़ पढ़नी शुरू कर दी, साडे बहुत प्यारे वीर ने वो इत्थे इंग्लैंड ही आए हुए ने, तो मैं उन्हें पूछा की करते होंगे जाके, उत्थे भी पाठ बहुत करते हैं। कहते भी मैं सहज पाठ ही करता रहना, लड़का उन्होंने लड़के उगाए ने। मैं क्या कितनी करते हैं, कहते भी मैं 3 तो पक्के 4 सहज पाठ महीने से करता। मैं कह भी किन्नी चीज पढ़ते हो, कहता 35-40 अंक आराम ना कर ली। मैं क्या कभी मन रुकया भी, कहते नहीं, मैं कहा नहीं रुकना, नहीं स्पीड ही पढ़ ली बहुत है, ये कितने रुकना। मैं कहा मन रुकया कितने अड़िया भी, आ की चीज लिखी है, ये किहदे लई है, ये की है, कहता नहीं मैं कहा नहीं रुकना। असी स्पीड ही मन में नहीं पकड़ा ली, रुको कुछ ये रुकन के चांस नहीं। ये रुकना कदों इन्हें, जदों इनू श्री गुरु ग्रंथ साहब का एक एक अखर लगा भी मेरे लिए लोगों लिए नहीं गा। ये की आ कित्थे जाके इन्होंने पातशाह ने जां भगतां ने जां भट्टा ने कित्थे किस लैवल से जाके गुरबाणी लिखी है, कि नहीं वो लैवल की सीगा। ये फिर मन जो पकड़ करनी शुरू करेगा, फिर पता लगो रस होना शुरू करेगा, फिर सानू समझ लगेगी साडे जिहड़े सवालों ने फेर के अगे रखिए। जित दिसे दरबार मोहों के बोलन बोली जिस तुम तरे पे, इसका मतलब परमात्मा प्यार भी करता, इसका मतलब परमात्मा का दरबार भी दिसदा। फिर की है, अमृत वेला सच नाम वड़ियाई भी जान। मनुख तेनू परमात्मा प्यार भी करूगा, तेनू दरबार भी परमात्मा का दिसूगा, तेरे अंदरों कूड़ की कंध भी टुट जू, तू सचारा भी बन सकता, तेन एक काम करना पैना। किहड़ा जी, अमृत वेला। अमृत वेले की करना, सिमरन करना, कि फोन पर टिक टिक देखनी है, व्हाट्सएप की आ गई, फेसबुक पर की आ गया, मैसेज किया गया, किन्ने मैनू लाइक किया, ये देखना कि सिख ने सिमरन करना। जो इंसान अमृत वेले उठ के सिमरन करूगा, विचार करूगा कि परमात्मा ते मनुख में कोई फर्क नहीं है, परमात्मा के इंसान में कोई फर्क नहीं है, फर्क सिर्फ गुणा ते अवगुणा का। जिदा का परमात्मा आप उदा का इंसान मनुख होना है, ये लैवल वा। फिर एक पैर चक्कू का वाहे दूआ रखूगा, गुरु अपने आप निकलना शुरू होगा, गुरु खपने की जरूरत नहीं, संघर्ष करने की जरूरत नहीं पैनी, पर शुरुआत आप मुड़ के उत्थे करनी पैनी। दूसरी एक निम्रता सहित बेनती है, किसी ने जो मेरे नाल देखा हो, ऐसे भी जाया नहीं, जॉन बोमी नाम का एक गोरा, वो फ्रांस पेरिस तो 630 किलोमीटर से रहिंदा सी। जब भी मेरे नाल आया, उत्थे कमेंट्री आया 10-12 साल पहले, उहदी भी जदों मैनू मिलिया उदों तकरीबन 53 साल की उम्र। उन्हें ध्यान ना सर मैं सफल समझांगा अज दा होना, जे साडे थोड़ी जी पकड़ च पै गई गल। वो शिकार खेडदा हुंदा सी, शिकार ਉਹਦੇ पिता जिदा प्रवासी पंछी आते हैं, ਉਹਦੇ दसण था, वो कहना मैं फैर मारिया, मैं 13 साल की उम्र से पिता ने कहा फैर मार, मैं पंछी मारिया, मेरे दोनों हाथ खून ना लगे, पंछी दे गया 200-400 गज ते, मैं कहता देखा हाथ के, उस बाद मैं अपना मीट नहीं खाता, सिगरट नहीं पीती, नशा नहीं किया, सच से तुर गया परमात्मा ने दी, उन्होंने बुद्धि मिल गई। किसी को पता भिक्षुओं बारे, भिक्षु कितना बनते, भिक्षु बनते हैं जी 1 साल 1 महीना 1 दिन का एक कोर्स होंदा वा, 3 कोर्स करने पैंदे। वो सवेर के 4 बजे तो लैके शाम के 9 बजे तक बॉक्स बनाते हैं, डब्बा इदा फट्टियां ला के, वो बैडा ला के बंदे टोए सर देंगे, पौनी ला के टोए। वो भी 1 साल 1 महीना 1 दिन का कोर्स, रात तड़के 4 तो 9 बजे तक वो मंत्र पढ़ना होंगे, ते 3 मंत्र ने वक्रे वक्रे, एक पहला कट्ठे भी कर सकते, 3 साल 3 महीने 3 दिन तक वक्रे वक्रे। उन्हें
कहता भी मेरे च इन्नी शक्ति आ गई, कहता मैं किसी बीमार को हथ लाना ठीक हो जाता सी, पर एक मैनू अंदर कहता कमी दिसी, वो नहीं समझ पावे भी अंदर की कहानी है। कहता मैं चौंकड़ा मार रहना, 2-4 6 घंटे बैठे रहना, भिक्षु बहने। वो पैरिस में आ गया किसी काम लिए, एक उहदा बेटा सी छोटा जिहा, ते उहदी घर वाली, ते उधरों कल्ला आ गया, ते दुकान के उत्ते किस्त लगी हुई सी सुखमनी साहब दी। वो ठंडा लैन गया 9 बजे, जिद्दां अपने भावें शराब की वाइन की दुकान हो, उत्थे सुखमनी साहब का पाठ शराब दे जाके गल करन वाली हैगी। गुरबाणी कहती दुरमत मत जो पींदे बिखरी पत कबीर राम रसैन जो ते नानक सच मरे, भी गंदी मत वाले जिहड़े शराब पींदे ने, दुरमत एक होंदी, मन मत एक होंदी, गुरमत एक होंदी है। दुरमत दुरमत गंदी मत वाले पींदे, उन्हां दी जिहड़ी हैगी आ इज्जत आ बेसवा दे पति वाली। बंदा की कहूगा मेरे घर वाली की करदी मेरी, जिहदी घर वाली बेसवा, इह जी लिखिआ। वो कहंदा भी मैं उत्थे वो पाठ सुनिया, कहते उन्होंने पूछा, उन्हें ये की आ, कहता मेरे अंदर एक वखरी जी चनार सी। हम फ्रेंच बोलता, वो पंजाबी च गुरबाणी लगी है, तो वो तो ना इंग्लिश आती। वो पूछण लग पिया, ठंडा भुल गया कि की है। वो कहता की आ बुआ कोई नहीं, इत्थे सुन पीनी तो पी ला, बीर पीला जो पीला पीना, साढ़े को देख कुछ ये असीं किस सिरे ला लेंगे। वो कहता भी ये बारे मैं जानकारी लैवी कित्थों लवां। उत्थे 10-12 मिनट का उत्थों राह गुरुद्वारा साहब का ही पबीनी, कहता भी वो गुरुद्वारा साहब वो इशारा किया, उत्थे जाके पुछना। नेक नेत भी नेक नेत कुदरती, मैं भी कैनेडा तो आया हुआ सा, मैं भी दर्शन कर लगा गुरुद्वारा साहब, तो वो इकट्ठे से हो गए। तो मेरा ख्याल मंडे सोमवार का टाइम सीगा, तो संगत तो होंगी नहीं, ग्रंथ सिंह कल्ला ही सी उत्थे, वो भी किते थल्ले बेसमेंट चों भी गुरुद्वारा साहब जिन्हें देखा उत्ते पौड़ियां चढ़ के उपर। वो आखण लगा मैनू भी गुरुद्वारा साहब ने एंटर हो गया, कहता भी मैनू शांति चाहिए। नहीं मैनू पूछा भी तेन फ्रेंच आती, मैं क्या आती, गुरु की किरपा नाल मैं फ्रेंच ते जर्मन भाषा ये प्रॉपर सीखियां ने। तो मैं क्या भी कहता मैनू शांति चाहिए। मैं क्या भी इत्थे की लैना है, कहता शांति। मैं कहा ना ना भरा, जे क्लेश रहना सिखा ना तो गुरुद्वारा साहब जी है, जिन्ना मर्जी लै जा, पंडा भर के लै जा, क्लेश दी लड़ाई, दाड़ियां पोकरदे एक दूजे पग्गां लाउंदे। मैं कि इत्थे साडे कोल देख तू शांति कित्थों लभ ली। कहंदा मैनू मिली है। मैं तैनूं कित्थों मिली है। कहंदा मैं इदां कैसट सुनी है, फिर मेरे दिमाग च आई दी किते कीर्तन गुरबाणी दी कैसट सुनी है। उन्होंने मैं कहा तेरी बड़ी समस्या खांदी है गुरुद्वारे साहब जा। कहंदा की? मैं कहा तेनूं जुत्ती लाउणी पैनी है, जे सिगरट सूट तो पीना छड्डणी कड्ढणी पैनी है, सैट करना पैना, बड़े पंगे। कहंदा मैं सिगरट जिंदगी पीती नहीं, मैं जो कहूँगा करूँगा, भी एक बार तू मेरी चीज दिखा दे कि, क्योंकि उनको तो पता नहीं गुरु ग्रंथ साहब की है। पौड़ियां चढ़ते चढ़ते ने मैं पूछा तू करदा की है, भी तेरा किता है? कहता मैं MA म्यूजिक की कीती। मैं कहा तेरी तो कहानी सौखी बन गई, साडा काम ही गुरबाणी शुरू संगीत तो की गुरुआ ने, ते रागां तो की। कहता अच्छा। उत्थे जाके साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब के दर्शन कराए। दास नूं मैनूं बहुता वाजा नहीं आउंदा, माड़ा मोटा ते तबला तो बिल्कुल ही नहीं आउंदा। उहनूं दिखा के मैं कहा भी आस करिए कुछ, उन्होंने वाजा फड़ा के मैं कहा भी तू इत्थे कर वाहिगुरू सिमरन, तो मैं वजाउणा वाजा तबला। कहंदा भी मैनूं वाजा हारमोनीयम नहीं आउंदा, दूई तो मैनूं सारे आउंदे। मैं कहा सेम सुराइयां भी यार सारे गम सेम ही। इत्थों मैं उन्हें पकड़ कर ली, वाहिगुरू वाहिगुरू करन लग पिया। मैं वाजा वजाउण लग गया। 13-14 मिनट होए होने, 15 मिनट शायद नहीं होए। कहता गल बन गई। मुक्ति गल बड़ा खपिया मेरे नाल, मैं बड़े टाले मारे। उन्हें नितनेम सीख लिया 2-3 महीने तो इंडिया मिलना याद आके उन्हें अमर छक के आ गया। जी हुण तुहानूं गल सुणाउणी चाहुंदा, डरबी इदां तुहाडा इकट्ठ होया, उत्थे नौजवानां दा इकट्ठ सारा, ते उन्होंने मैनूं कहा भी तुसीं उन्हां नूं लैके आउणा जरूर, जिहड़ा गोरा सिख है। हुण मैं लै आया। वो कहंदे ने इहनूं पुछो भी फ्रेंच इहनूं आउंदी, सानूं तां असीं गल नहीं कर सकदे इंग्लिश च, ते इहनूं की लभ्या सिੱਖੀ जा रही। उन्हें जवाब दिता सर मेरी मैंने शर्म आती दस दिन। कहना सिखो, क्योंकि 25-26 साल वाले बच्चे से कहना 25-26 साल जो थोनू नक रगड़ नहीं मिला, मैंने 13 मिनट मिल गया। आपको सतनाम।
कहता मैनू 13 मिनटां च मिलिया, उन्होंने पता साडी हालात का। अजीब गल, कितों अर्थ नहीं सीखे, कुछ नहीं सीखा उन्हें, उन्हें पढ़ना नहीं आता। उन्होंने जेड़े मर्जी जाप साहब जितों मर्जी अर्थ पढ़ो आप दस देंगे, किदा दस्से उन्हें ਉਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਉਸ परमात्मा का वो वास्ता उन्हें ਉਹਦੀ पहले मालक ने बड़ी बनाई ਤੇ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ, ਇੰਨਾ गुरु ना प्रेम पै गया, सारा कुछ परमेश्वर अकाल पुरख ने आपे दे। जिदन सानू ये समझ पै गई पातशाह दी, इस पवित्र गुरु दी, सानू किसी तरह की किसी को जान की जरूरत नहीं। हुण की है साडा हालात, मंदिरां च तां असीं जा वड़दे, कबरां ते असीं मत्था टेक आउने, चादर असीं चढ़ा आउने, मौड़ियां असीं बन्नी जाने, रखड़ियां असीं बन्नी जाने, सारे कुछ करके फिर गुरुद्वारा साहिब च आउने। मैनू कोई 22 साल बाद इंडिया जाने का मौका मिले तो ड्राइवर मेरे नाल से आनंदपुर साहब जा रहे तो कोई गुरपुरब नहीं आ, कोई मेला नहीं, दवा मिठाई दी दुकाना तो बड़ा रश फूट दिया दुकान। मैं पिंडों मुंडा नौजवान से ड्राइवर, मैं कि क्यों अज की गुरपुरब की है, दिन की है, कहना थोड़ा पता नहीं। मैं कहनी कहना करवा चौथ का वास्ते है, सिक्खी बीबियां मिठाइयां खरीद रही, सिक्खी कर रही। मैं कि किसी बीबी को ये नहीं पता लगा हजे तक, हर का सिमरन छाड़ के अहोई राखे नार, गधी होए के उतरे भार सहे मन चार। मैं किसी ग्रंथी ने दसिया नहीं, कहना दसना कि गुरुद्वारा साहब तिन्हां दी अरदास हुंदी है, करवा चौथ दी, लोहड़ी दी अरदास हुंदी है। कमाल दी खेड भी पानी गुरबाणी ये कह रही भी परमात्मा काल पुरख अहोई। एक भैनों वास्ता नाराज ना हो जाना, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। परमात्मा काल पुरख ਦਾ नाम ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅਹੋਈ ਰੱਖਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਧੀ ਆ ਸੀਤਲਾ ਮਾਤਾ ਦਾ ਉਹ ਵਰਤ ਵਾ, ਸੀਤਲਾ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਆ ਗਧੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਚੂਹਾ, ਤੇ ਗਣੇਸ਼ ਕਿੱਡਾ ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਚੂਹੇ ਤੇ ਚੜਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਨਾ ਗਿਆ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾ ਗਿਆ ਵੀ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਚੂਹਾ, ਇਹਦੀ शीतला माता की सवारी हैगी आ गधी, शिव जी की सवारी चट्टा पाल। सानू मना ले, सानू चंगिया भलिया मना के उन्होंने मोरे साडे परोस के चीज रख दी, असीं एक्सैप्ट करी बैठे ते गुरु साडे ते खुश है। पातशाह कहते जिहड़ा शीतला दा वर्त रखदी अहोई ना, अहोई वर्त ना रखदी, उहने अगली जूने गधी नहीं पैना। क्यों? क्योंकि ओदी तेरी शीतला की सवारी गधी है। जे शीतला मन गई, शीतला ने तो गधी बना के उत्ते चलूगी, तो उत्ते भार जो 2 मिनट से फिर उन्होंने पता लगूगा कि मैनू परमात्मा काल पुरख का सिमरन छड्ड के वर्त रखने का की लाभ। ये साडे हालात बड़े ने, असीं सारे बने जाके ये कर्मां ने बच्चे ने तुहाडे जिहड़े अज मैं सुनिया जदों तुसीं आए, असीं आए रहस पाठ कर रहे सन, क्लासां ला रहे सन, ते बड़े भाग उन्होंने माँ पे ने जिहड़े आदे बच्चे इत्थे आए ने। नहीं तो 15-14 साल की, जो 16 साल की बच्चा जो ट्रैक तो बाहर निकल जाते हैं, पहला सारी 16 साल तक मावां भैणां उन्होंने लियाउंदियां नहीं। जे लियाउंदियां कदों, जो छोटा जिहा बच्चा हुंदा उन्होंने धौणों फड़ के मत्था टकाउंदियां, उन्होंने पता ही नहीं बच्चे नूं क्या हुंदा। जदों उहदी लियाउण दी वारी हुंदी, समझ दी वारी, उदों गैप पै जांदा, परे रख उन्होंने मावां भैणां नूं अखां 'च सुन दे के रोना नहीं पवेगा, जिहड़ियां अज गुरु महाराज की हजूरी 'च लिया लैके बच्चों को उठाउणे। हुण मेहनत कीती, उन्हां दे काम आऊगी। नहीं तो जदों ट्रैक तो बच्चा बाहर निकल जाता, फिर इत्थे आण के गुरुद्वारा साहिब ग्रंथी सिंह नूं 5 पाउंड या 2 पाउंड दिंदे भी, तूं अरदास कर, की सुनी जावे किता। एक मैं बेनती होर करनी चाहुंदा, श्री गुरु नानक देव जी पातशाह ने जो भाई लहणे जी नूं गुरगद्दी दित्ती, भाई लहणा जी ते साखियां प्रचलित ने, साखी सैत हुंदा कि साखी प्रचलित है। गुरु नानक देव जी कहते भाई लहणिया भी ओ मुर्दा सड़ी गली लाश खा, गुरु कह सकता। ये साडे लई एक प्रमाण सी। लहणिया ये जिहड़े लोग आ मुर्दा हो चुके, मुर्दा ये जिंदियां लाशां ने, सड़ियां लाशां तुरियां फिरदियां। ਇਹਦਾ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, परमात्मा ਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ। कर्मकांडी हो चुके ने, पखंडी हो चुके ने, लोभी हो चुके ने, हंकारी हो चुके ने, चुगली निंदिया से सारे जिन्हें फस चुके ने, ये मुर्दा लाशा ने।
तेनों इनू खाना जो खानी कोई सेब नाशपाती कोई खाइए प्यार जागता अंदरों एक फीलिंग जागती है भी तेनों इन्होंने प्यार करना पैना मुद्दा लच्छा ना। एक कहानी दूसरी साखी पर चलता भी गंदे लोटे गंदे नाले चो टोबे चो लोटा कट गया गुरु अपने सिख नूं मारूगा वो भी साडे लिए एक प्रमाण लैणिया। ये समाज बड़ा ही गंदा हो चुका पर तेनों इस समाज नूं साफ करने की जो भी माननी पैनी तां ही समाज साफ होगा। क्यों समाज गंदा सी जी जमदियां कुड़ियां नूं कोई 2-10 दिन की 5 दिन की जहर पवा देंदे कि अख दे के मार दिंदे सी। अज गुरु नानक देव जी साडी हालात देखण उदों तां कुड़ियां नूं कोई सूरज साज दिखाई दिंदी सी 10 दिन की मारते सी अज तां जमदी नूं मार दिंदे जम्मण तो पहले मार दिंदे। किहड़ी औरत वा जिहड़ी अपने पेट च कब्रस्तान बना लेगी जिन्होंने पता कितना अबॉर्शन होता कट कट के वढ़ के बच्चे पीस करके बाहर कटिया जाता सिटिया जाता कोई बच्ची चाहती। साडे गंदे समाज की बदौलत काम हो रहा ना साडा कोई राजनीतिक ना धार्मिक ना कोई होर हो रहा। गुरु नानक देव जी की कहेंगे की साडे बारे सोचेंगे। ये आउंदा समा श्री गुरु अमरदास जी ने अपने समय के सामना लोगों सती की रस्म झुंड की रस्म खत्म की। गुरु रामदास पातशाह ने कितना सोहना सानू 4 दरवाजा 4 गेटा 4 वर्णा एक सरोवर कितनियां जातां पातां सन। ऐसी नूं जिहड़े शेड्यूल कास्टां नीच जातां उन्होंने नेड़े नहीं लगन दिता जाता। पातशाह ने कहना इत्थे आन के तुहानूं पहले नहाउणा पऊ सारिआं नूं एक सरोवर ए पंग च लंघण छकना पऊ प्रथम पंगत पासे संगत इत्थे आओ पहला जात पात ऊंच नीच इलाका भी सारे खत्म करके पंजवें पातशाह नूं जो देखा पंजवें पातशाह ने भी जालम जुलम बहुत कर लिया क्योंकि लोग चक्की के 2 पुड़ होंदे 3 पुड़ां च पीसे जा रहे थे। गुरु नानक देव जी के समय तो एक पुड़ मलाणियां दा सी मुसलमानां दा जिहड़े राजियां नूं चुक चुक के लोकां दे जुलम कराउंदे सन। एक सिद्धां दा सी एक हिंदुस्तान के कर्मकांडी ब्राह्मण का इतों तक किसान लोग ब्राह्मण को पुछ के धरती पुछते थे हल जोड़ लिए धरती सुती के जाने की कमाल की गल। बच्चा पाल लिया पुछते थे जोग लो ते विआह की रस्म कोई रस्म बाजी का उन्हें तो कराते सन। तो गुरु अर्जन देव जी पातशाह ने शांतमई शहादत दी है पर अपने आने वाले वारस नूं की कहा जी 6वें पातशाह को श्री गुरु हरगोबिंद साहब आप शांतमई शहादत दे रहे उन्होंने घोड़सवारी सिखा रहे ने उन्होंने शस्त्र सिखा रहे ने। सफल निपुण अध्यापक बाबा बुढ़ा जी बस शस्त्र विद्या सिखा रहे ने घोड़सवारी सिखा रहे ने फौज उन्होंने कहते तैयार कर आप शांतमई शहादत दे क्योंकि गुरु अर्जन देव जी पातशाह को पता सी ये जिहड़ी बीमारी है ना जालम जुल्म जिहड़ा जुल्म कर रहा मजलूमां निर्बल कमजोर लोगों ते इहदे जुल्म करनों हटना नहीं मेरी शहादत इहदे वास्ते शास्त्र चुकना अवश्य जरूरी है। गुरु हर राय ने गुरु हरकृष्ण महाराज ने गुरु हरराय साहब ने फौज रखी। गुरु हरकृष्ण साहब जी ने थोड़ा समा जिन्ना शरीरक तौर पर समा उन्होंने प्रचार किया। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी आप शहादत दे रहे शांतमई ते अपने आने वाले वारस गुरु गोबिंद सिंह नूं कहंदे ने शस्त्र सिख घोड़सवारी सिख फौज तैयार कर। गुरु हरगोबिंद साहब गुरु तेग बहादुर साहब नूं पता सी कि जिहड़ी ये बीमारी फैल चुकी है मेरी शहादत देने नाल इस बीमारी का भी पूरी तरह इलाज नहीं होना। ते गुरु गोबिंद सिंह पातशाह नूं जदों गुरगद्दी मिली उस समा आपां कदी देखिया अपने अंदर चितविया कि 9 साल का बच्चा अपने पिता नूं कह रहा भी तुहाडे तो उत्ते महापुरख किहड़ा हो सकदा जिहड़ा शहादत देवे। कोई पुत्तर तोड़ सकदा है इस धरती ते बाल अवस्था दे विच उस सीन किहो जिहा जां उह सीन किहो जिहा होवेगा कदी अंदर तुहाडा अपना हिलिया भी गुरु गोबिंद सिंह पातशाह पास पिता दा सीस तली इदां रख के थाली ते मोहरे आउंदा 9 साल के बच्चे के मोहरे पिता दा सिर ते गुरु गोबिंद सिंह पातशाह पास भी 2 रास्ते सीगे स्पष्ट जां तां अपने दादे परदादे
गुरु अर्जन देव जी पातशाह वांगू, शहीदां दे सरताज शांति दे पुंज वांगू जां अपने पिता वांगू शांतमई शहादत दे दिंदे। पर ये जिहड़ी दवाई सी अजमाई जा चुकी। ये डॉक्टर वही सियाणा जिहड़ा दवाई बदल के देवे, जिहड़ा दवाई होवे दा मूर्खी डॉक्टर हो। ये दवाई उन्हें चेक कर ली, दवाई ने पूरी काट नहीं की। जुर्म तो उदा होंदा रहा मजलूमां ते, धक्के नाल जनेऊ लैंदे रहे। जिहड़ी अज कौम गप्पां गल्लां करदी है, सवा मन जनेऊ जे 16 किलो का उदों मनीए तो 20 किलो रोज के जनेऊ ला के किन्ने का हुंदा, जिन्हों 50 ग्राम का नहीं होंदा, ला के ब्रेकफास्ट करता है। तो कित्थों तक जाके वो जगन्नाथपुरी तक बंदर लुट के लै जांदा है। कहते आपे भगवत आखी करो। लड़के बन बन के लै गए बेटियां, 2 बेटे। ते गुरु गोबिंद सिंह पातशाह पास एक ये रास्ता ही, दूजा रास्ता किहड़ा सी जी, जिहड़ा साडा अज दा साध लाना, जिन्हों साध कह नहीं जा सकता। साध वो जिन्हें साध लिया मन, संत हो जिहदा मन शांत हो गया, एकाग्र हो गया, टिकाऊ जा गया, वासनावां तो रहत हो गया। साडे तो वासनावां ने भरे हुए ने सब। चलो ये मन नहीं लभ। जिहड़े कह रहे ने केवल सिमरन करना चाहिए, बाणी पढ़नी चाहिए, हक सच की गल नहीं करनी चाहिए। गुरु नानक के मिशन नहीं भुल गए। गुरु नानक पातशाह बाबा नूं कह रहे इधर आओ यावरा, कोई दुनिया का साध होया जिहड़ा राजे की लगाम फड़ के कही थे खड़, जुल्म करना बंद कर, किहड़ा होया? गुरु गोबिंद सिंह पातशाह पास एक ये रास्ता सी। अज दे अखौती साधा वांगू अखा मीटदे सिमरन करदे बेअर्थ सिੱਖੀ सेवकी सी। गुरु गोबिंद सिंह नूं औरंगजेब ने की कहना सी? अपना लिया हुआ शहर मुल खरीदिया शहर सी, किले अपने बने हुए सी। इहदे वास्ते गुरु गोबिंद सिंह नूं अखां मीटणियां पैणियां सन। अखां नहीं जिहड़ियां आपां अखां, जिहड़ा जुर्म हुंदा लोकां दे, पाप हुंदा तशद्दुद दा, उह तों अखां मीटणियां पैणियां। ये जागदी जमीर वाला इंसान कभी नहीं परवाह कर सकता। जिहदी जागदी जमीर आ, इंसान दे अंदर वो जुल्म लोकां दे हुंदा देख के जुल्म करना भी पाप आ, जुल्म सहना भी पाप आ, ते जुल्म हुंदा देखना भी पाप आ। गुरु गोबिंद सिंह दी जागदी जमीर ने परवाह नहीं की। तीजा रास्ता की सी? गुरु पातशाह ने कहा भी पहली दवाई भी जमाई जा चुकी है, दूसरा रास्ता भी मैनू अखां मीटियां पैणियां जदों दा। तीजा रास्ता पातशाह ने अपनाया। जिहड़े नालियां जो गंद कढदे गरीब लोग दरले हुए सी, दबे हुए सी, जिन्हां नूं हिंदुस्तान के कर्मकांडी ने साह नहीं लैण दित्ता, जिहदे बारे लिखिया सी जे ये राम दा नाम लेदा तां कंन सिक्का पा दो तार के, ताकि अगे तो गुस्ताखी ना करे। एक भी राम का नाम लैदे जीभ कट दी जाए। इहो ਜਿਹੇ लोगों पातशाह ने गंद कढ़ण वाले, तकड़ी तोड़न वाले, डरपोक लोगों, हड़ होने वाले, माड़े तो माड़े, गरीब तो गरीब, दबड़े कुते लोगों पातशाह ने शस्त्र पहना के, खंडे बाटे की पहुंच छका के, जात पात ऊंच नीच इलाका वेद लिंग भेद खत्म करके पातशाह ने एक 5 प्यारे पंजां दी सानू कमांड दी, फौज दी। देखो कितनी दूरदेशी हो गई। 5 प्यारे, 5 वख-वख जातां, 5 वख-वख श्रेणियां तो 5 वख-वख इलाकियां तो लैके सानू कमांड दी। कि सिख ये ना कहण माਝੇ वाले कहण साडा अमृत आ, दुआबे वाले कहण 5 प्यारे साडे ही, ਜਾਂ जट कहण 5 का साडे ही, ਜਾਂ दूसरी जात कहण साडे ही। पातशाह ने कितनी दूरदेशी का सानू एक कमांड सवारी। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਬੰਦੇ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਿਮਰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫੜੀ ਹੋਈ ਤਲਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੇਗੀ, ਜ਼ਬਰ ਕਰੇਗੀ। ਸਿਮਰਨ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਕੋ ਫੜੀ ਹੋਈ ਤਲਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਅਵਸ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਸਨ। गुरु पातशाह बंदा सिंह बहादुर किथे नदेड़ आ, किथे पंजाब। पातशाह उहदे पास गया, कहंदे कौन आ? कहंदा बंदा। वो कहंदा बंदियां दे काम आ, लोकां नूं डराउणा, धमकाउणा, तंग करना, कि देखी है। पातशाह ने कहा भी जे जिहड़ा जुल्म हो रहा, लोकां ते तशद्दुद हो रहा, बंदा वो जिहड़ा उहनां दे सामने अड़े, लोकां दी रक्षा लई, मजलूमां दी रक्षा लई, निर्बल कमजोर वर्ग दे लोकां दी रक्षा लई खड़ा होवे, वो बंदा। पातशाह ने उन्होंने बंदा बना के की चीज दी जी? ना बंदा बहादुर पास फौज, ना बंदा बहादुर पास पैसा,
ना बंदा बहादुर पास कोई हथियार, ਉਹਦੇ पास की सी 5 तीर 5 ਸਿੰਘ ਤੇ गुरु का थापना। जिस मनुख के पिठ के उत्ते गुरु का थापना, गुरु के उत्ते विश्वास वा, कोई दुनिया की ताकत हरा ही नहीं सकती, कोई हरा नहीं सकती, कोई छड़का नहीं सकती, कोई रवा नहीं सकती, वो परेशान नहीं हो सकता। उस बंदा सिंह बहादुर ने कितों आके उस सरहद की हज़ारां की फौज के नाल इट ना इट खड़का दी, तैश नैश कर दिता कि ऐलान किया जिहड़े दुख की गल अज तक सिख नहीं दस सके। अज फ्रांस का इनकलाब पढ़ाया जाता 1799 का, बंदा सिंह बहादुर का 70 साल पुराना इतिहास ही उस तो पहला का नहीं पढ़ाया जाता भी जगीरदारी बंदा सिंह बहादुर ने खत्म कर दी। वही कारण जमीन ऐलान बंदा सिंह बहादुर ने किया, ना कि फ्रांस ने किया। फ्रांस ने 1799 किया, वो पढ़ाया जाता किताबां, जिहड़ी किते MA को पोलीटिकल साइंस की हिस्ट्री पढ़ी उन्होंने पता होगी। तो असीं दस नहीं सके भी बंदा सिंह बहादुर ने की किया। जिहड़े मजलूम दबे कुचले लोग सन, गरीब मजलूम जिहड़े हिंदुस्तान के कर्मकांडी ब्राह्मण ने, जातां पातां ने, उन्होंने चंगियां चंगियां पोस्टां लाया, जॉबां ते लाया। एक होर काम किया, आप गवर्नर भी नहीं बने, राजा नहीं बनया, आपदे नाल दा सिक्का नहीं चलाया। असीं ये लोकां नूं दस्से आकी नाइटिंगेल इटली का सानूं राज क्रॉस पढ़ाया जाता। भाई कन्हैया का कोई पता किसी को भी इस तो उत्ते घनेई भाई है, घनेई जिन्हें ये साडी बदकिस्मती है कि असी सिख इतिहास नूं, सिख सिद्धांत नूं असी चंगे तरीके नाल पढ़ा नहीं सके, समझा नहीं सके बच्चों ते लोकां नूं। इहदा एक मैं प्रॉब्लम लभी है, कारण लभ्या। 3 चीज़ों का सबीर होंदा, प्रबंधक, प्रचारक ते संगत। तिन्नां विच ढिल आ गई बहुत वड्डी। प्रबंधकां ने यह सिस्टम बनाउणा हुंदा कि कोई अच्छा प्रचारक सद के इन्हां बच्चों नूं, इन्हां नूं बीबियां भैणां बजुर्गां नूं गुरती दित्ती जावे, तुसीं सिख कौन हो, तुहाडा सिद्धांत की है, फिलोसफी की है, आइडियोलॉजी की है। इन्हां दा साडे गुस्सा ना करिओ कि इत्थे दे प्रबंधकां बारे, प्रबंधकां ज़्यादातर प्रबंधकां ये ख्याल दा वड्डी तो वड्डी पिंड किवें सारनी है, किवें महंगे तो महंगा पत्थर लाउणा, इत्थे महंगी तो महंगी पालकी लाउणी, महंगे तो महंगे, उन्हां नूं दूसरी कोई बहुती खास नहीं हुंदी। जां किहड़ा तरीका वरतना जिहड़ी संगत वध तो वध गुरु च पैसा पावे। ते संगत दा ये हुंदा भी आपां लंगर छाणी छकणा, जे फलानी ने फोन किता जाना जी बाहला की घंटा क जाना, छड्डो परे बाकी काम। प्रचारकां ने यह हुंदा ज़्यादातर प्रचारकां दा भी जो प्रबंधक कहंदे उस हिसाब दे नाल गल करो इत्थे, तां जिन्हां ने सानूं कोई प्रोग्राम नहीं देना। ये सारे एक दूसरे के गुलाम हो चुके, सिस्टम में इन्ना विगाड़ हो चुका है। जितने ये साडा सिस्टम बन गया, असीं सारे मिशनरी बन गए, सारे प्रचारक बन गए, जो साडे घर घर धर्मसाल बन गई, सानूं फिर रोने नहीं पैणगे जिहड़े सानूं हुण रोने पै गए। एक मैं आखिरी बेनती करके खिमा दा जातिगा, तुसीं भी कम्मां कर जाना, मैं विहला मापिआं दा नलैक पुੱਤ हां, मैनूं कोई होर काम कार नहीं गा। इत्थे गतका भी सोहणे खेडते होने सिंह ते प्रचार भी करते होने। किसी मुख प्रोग्राम ते मुख मेहमान मैनूं बुलारा सद लिया, सिंह किंग ते कॉलेज क्वीन मुकाबले होंदे ने, उत्थे गतके की प्रत्यक्ष नहीं सी। उन्होंने ये फरवरी की गल है, उदों हदवाना मिलता नहीं गा, मार्केट च हदवाना अप्रैल जे जाके आउंदा। उन्होंने गतका खेडदा कुड़ी तो 15 हदवाने तोड़े ते इन्ने के नारियल तोड़े, वो खार दिते, सुट दिते, गारबत करते। मैं अब संगत नूं अपना परिवार समझदा जी, हर थां जे संगत च गल नहीं करनी प्रचार करे, मैं प्रचारक नहीं मानदा। गुरु की हजूरी सच की हक की गल नहीं करनी, प्रचार कर, क्योंकि असी लायक नहीं मनुख तख्त भाई, तख्ते की लायक लायक ही नहीं, तख्ता से बैठ गए, तख्त राजा सूबे जो तख्ते लायक हुई जी सच पछाड़िया, सच राजे सही अभी लायक ही सच पछाड़िया नहीं। उन्होंने तौर पर बेनती उन्होंने की कि अज हुण फरवरी महीना, हजे बहुत सारे अमीर लोग भी जिन्हें हदवाने का टेस्ट नहीं देखा, क्योंकि 30 रुपए के करीब हदवाना किलो आ। बहुत मनुख है हुणे इस धरती से, मैं क्या जिन्होंने हदवाने का टेस्ट जिंदगी च नहीं देखा होगा, गरीब झुग्गियां च रहण ते नारियल का
ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ 15 ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਆ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਨਾਰੀਅਲ। ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਅਛੂਤੋਸ਼ ਭਨਿਆਰੇ ਵਾਲੇ ਸਰਸਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਗੱਤਕੇ ਨਾ ਹਦਵਾਣਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦੇ, ਸਿਰ ਤੋੜਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾਲੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੋਲਣਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਪਾੜ ਕੇ ਨਾਲੀਆਂ 'ਚ ਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਰੂੜੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਿੱਖ ਗੱਤਕੇ ਦੀਆਂ ਸੋਟੀਆਂ ਨਾਲ ਹਦਵਾਣੇ ਤੋੜਨ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਿਰ ਤੋੜਨ ਜੋਗੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੇਮ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਪਈ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਤਕਾ ਇਸ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕਰਨੀ ਕਿ ਕੱਦੇ ਦੀ ਦਾਰੀ ਦੀ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਕਰਕੇ ਵੰਡੋ। ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲਕ ਹੈ ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਸਿੱਟੀ ਜੁੜਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਕਰ ਲਏ, ਖਰਚ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਦੂਸਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਲਾਮ ਕੌਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇਖੋ 2100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਜੰਜੀਰ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਬਣਾਇਆ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਸੌਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਚੁਕਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਪੁੱਤ ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਜਰੂਸਲਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੱਟਣੀ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਆਪਾਂ ਜਰੂਸਲਮ ਜਾਣਾ, ਜਰੂਸਲਮ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਗੁਰਤੇ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਆਪਾਂ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਮੱਤ ਛੁੱਟ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੈਰ ਕੁੜੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੱਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਹੱਕ ਵੀ ਗਵਾ ਬੈਠੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਪਾਸ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਆਪ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਮਝੋ, ਉਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਢਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਇਸ ਜੀਵਨ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਹੂਕ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹੀਏ ਭਲਾ ਕਹੀਏ, ਝੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਜੇ, ਗੁਨਾਹ ਕਾ ਹੋਵੇ ਵਾਸਲਾ ਕਰਵਾਵੇ। ਫਿਰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੂਕ ਨਿਕਲੇਗੀ ਦੱਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਉ ਕਿਸੇ, ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾ ਆਪਣੇ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀਜੇ ਵਰਜਣਾ। ਹੁਣ ਭੈਣ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਬੀਬੀ ਤੇਰਾ ਕਰਕੇ ਨਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਤੂੰ ਕੰਮ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਬੱਚੇ ਨਲਾਇਕ ਹੋ ਗਏ। ਘਰ ਵਾਲਾ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਨ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਦਣ ਉਂਗਲ ਆਪਣੇ ਲਾ ਗਈ ਦੱਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਉ ਕਿਸੇ, ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾ ਜਿੱਦਣ ਉਂਗਲ ਆਪਣੇ ਲਵਾ ਗਈ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ। ਉਧਰ ਫਿਰ ਹੋਊਗਾ ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੀ, ਮਿਲੇ ਸੂਖ ਨਾਮ ਹਰਸੋ ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਲਾਹੇ ਹਮਾਰੀ। ਇੱਥੇ ਲੱਭ ਜਾ ਲਾਹੇ। ਮੈਂ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਲਾਹੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਰਕ ਪਤਾ ਕੀ ਪੈ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਪੈ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਲਾਉਂਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਜੇ ਲਾਹੇ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਲਾਉਂਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ, ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਈੜੀ ਦੇ ਹਾਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਹੀ ਬਦਲਤੀ ਸ਼ਬਦ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੈ ਗਈ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਬਹੁਤੀ ਸੰਥਿਆ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕੱਪੜੇ ਸੰਥਿਆ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰ ਜੁੜ ਗਈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਬੈਠ। ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਤਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਬੱਚੇ ਨਾਲ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਿਤਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਵਕੜੀ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੀ ਸਪੌਂਸਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਈਏ, ਉੱਥੇ ਦਰਖਤ ਲਵਾਈਏ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਸ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੇਤ ਤੁਸੀਂ ਦਸਵੰਧ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੇਚਣੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੰਗਲ ਹੀ ਲਾਉਣਾ। ਠੇਕਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਦੱਸਾਂ ਖੇਤ ਦਾ ਇੱਕ ਠੇਕਾ ਹੀ ਲਾਊਗਾ ਸਾਰੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਫੋਰਨ ਇਹ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੈਦਰੀ ਆ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੂ ਜਦੋਂ ਦਰਖਤ ਇੰਨਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਲਿਆ SGPC ਖਾ ਗਈ, ਫਲਾਨਾ ਖਾ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਝ ਝੂਠ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕੀ ਕੀਤਾ।
आप तो ही सोचते जी असीं दूसरों के इल्जाम लाने हैं, फिर उदों असीं इल्जाम नहीं लावांगे जो असीं आप काम करना शुरू किया। गुरु की किरपा अनुसार असीं पिंडां दे विच ये प्रचार की मुहिम चलाई। सतगुरु बड़ी किरपा, बड़ी सानूं पिंडां दे लोग सहयोग दे रहे हैं, बच्चे बहुत सहयोग दे रहे हैं। सो यही रोम रोम सवास सवास अरदास है। वीर जोगिंदर सिंह साडे भरा ने पिंडू ने इन्हां दे सद्दे ते मैं थक्या होया सीगा, मैं हजे हार नहीं मन्नी, हारिया हैगा खालसा पंथ की हार चुकी, मैं कौम का फौज का एक निक्का जिहा नमाना छपाई पर मैं हार मन्नी नहीं। हार मन लैनी होर चीज़ है, हार जाना होर चीज़ है। तो शरीर तौर पर पूरी इजाजत दिता। सिर्फ बर्मिंघम उत्थे सवेरे प्रोग्राम सीगा, उस तो बाद स्लो प्रोग्राम हफ्ते का उन्होंने जी महंगी गुरबाणी आ गुरु पातशाह की भगतां की वो उन्होंने विचार रखी है। तो वो जी सब तो दुख की गल है भी बहुत घट गुरु घर आसा की बात की थोड़ी व्याख्या मिलूगी। बहुत घट भगतां की गुरबाणी की क्यों नहीं मिलती, क्योंकि ब्राह्मणवाद के पंजे सूं करती है। तो जो डेरे आ वो सूँ निकल नहीं देना चाहते, वो गुरु उन्होंने रखी हुई है। हफ्ता 5-4 शब्दों की उत्थे व्याख्या करांगे, इन्हां वीरां ने सुन सकते हो, सुन भी लैन। वो मेरा ख्याल किसी टैलीविजन से लाइव आ रही है। केवल भगतां की गुरबाणी की जां मन की जां आखिरी उन्होंने जेल का जिहड़ा समा जेल च किद्दां गुजरिया, वो भी अकाल पुरख की किरपा, संगत दीआं सीसां, गुरु के थापने अनुसार ही बीत्या। नहीं जेल बड़ी औखा काम आ, जेल जेल ही है। ये परमात्मा की किरपा करो। संगतां ने इदां दी अरदासां की उत्थे भी अमर संचार हुए ने 2 अमृतसर विच जेल में जी 1957 की बनी कदी होया नहीं थी, 1923 की बनी नाभे जेल जिहदा रिकॉर्ड टुटा, उत्थे भी अमृत संचार गुरु ने पातशाह ने अकाल पुरख वाहिगुरू ने किरपा करके आप कराया। उत्थे खैर वो धरती की पुकार जेल की उस जगह की पुकार सुन के अमृत संचार होया। उत्थे भी लहरां बहरां लगियां, कीर्तन सवेर शाम उत्थे आह प्रोग्राम हुंदा एक सादा कीर्तन का। तो सतगुरां ने जिद्दां जिद्दां दी किसी मनुख ने पातशाह ने लिखी हुई आ बे साडी कोई पिछले संस्कारां की उदां दी पातशाह सेवा लै रहे हैं। ये बहुत बहुत धन्यवाद सारिਆਂ ਦਾ। रोम रोम सवास सवास अरदास है सच्चे पातशाह साडे ते किरपा करन, साडे ते रहमत करन। जिहड़ियां साडियां नाम ना वो सखणियां झोलियां सतगुर साडियां झोलियां पान। पुर चुक दी खिमा बख्शनी दिओ सतन सीसरियां जो होवे सहब से ये सीसा दो कि परमात्मा नाल जिहड़ी तंद टुटी हुई है वो दोबारा जुड़ जाए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।